Greeting dear students. So before going for the numericals of this chapter, first we have to discuss the most important formula which relate the focal length, the object distance and the image distance. The relationship, the formula which describe the relationship between the focal length of the mirror, the distance of the image and the distance of the object. उनके बीच में जो relationship describe करता है, that formula is called mirror formula. सेकेंड इज लीनियर मैग्निफिकेशन की जो हाइट है वो इमेज की ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कितनी है, छोटी है, बड़ी है, द रेशियो इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन. सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. सो व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. This is called mirror formula. Now what are the meaning of these symbol f, v and u? So what is the meaning of f? Small f is the focal length of mirror. Clear to everyone? Small f is the focal length of mirror, either concave or convex. Second is u. U is distance of object, and during the last module we discussed the distance in each and every kind of mirror should be measured from the P. So distance of the object from pole of the mirror. V is distance of the image from pole of the mirror, because all the distances are measured from the pole of the mirror. So now this is the mirror formula. 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. So what is this? This is a relationship between focal length of the mirror, distance of image from the pole, distance of object from the pole. So we don't have to go for the derivation of this formula, how this formula is derived, that will be in higher classes. So before going further, we will first discuss few of the important points whenever we are using the mirror formula. कि जब भी हम mirror formula यूज करने वाले हैं तो कुछ एक important point है, उनको हमको ध्यान में रखना है. So what are those points? First is we start from the let's assume object distance, which is u. While solving the numerical, most of you will be confused कि u का साइन किसके लिए है और v का साइन किसके लिए. Alphabetically, which letter will come first? Alphabetically, which letter will come first? U, and v will come later. पहले u आएगा फिर v आएगा. और हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमको इमेज बनानी है, चाहे हमारा कोई भी मिरर हो, पहले तो हमको क्या रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट. क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी जाके तो उसमें से रेडिएशन निकलेगी, रिफ्लेक्ट होगी और क्या बनेगी हमारी इमेज. if you get confused कि which letter is used for object and which letter is used for the distance of image, always learn this कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, u आता है, और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखना है, पहले रखना होता है. तो इसलिए u लेटर किसका है? ऑब्जेक्ट का. उसके ऑब्जेक्ट के रखने के बाद क्या आएगी? इमेज. और u के बाद क्या आता है? v. तो v किसके लिए हम यूज करेंगे? इमेज के लिए. So that is the shortcut to learn ki what is the meaning of symbol of u and v. So first is the object distance. Whatever the kind of mirror, either concave, either convex, in each and every case the object distance is always negative. कि जब भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यहाँ पे u की वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव. इफ समवन से कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो 5 सेंटीमीटर की वैल्यू जब आप यहां रखोगे, इट शुड नॉट बी पॉजिटिव, इट विल ऑलवेज बी माइनस. व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ कार्टेशियन रूल, व्हाट वी डिस्कस, जब हमने रूल्स डिस्कस किए थे लास्ट मॉड्यूल में, तो हमने क्या डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट के बारे में? ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी मिरर हो हमारा, आइदर इट इज कॉनकेव, आइदर इट इज कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट will always be on the left hand side of the mirror.
फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके लेफ्ट में, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके लेफ्ट में। तो जब भी हमको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज u इज ऑलवेज नेगेटिव। कभी भी आपको यहाँ पे u की वैल्यू पॉजिटिव में नहीं रखनी है। अगर आप पॉजिटिव में रखोगे तो कैलकुलेशन विल बिकम रॉन्ग। क्लियर टू एवरीवन? सेकेंड इज, first thing about u distance or value of u is always in negative. Now we will take the second. Before going further, we will discuss in the linear magnification. So object distance is always negative. Second is the distance of image, whether it will be positive or negative. That will depend on the type of image. I have written two words, real and virtual. तो हमने बहुत सारे डायग्राम बनाए थे किसके? कॉनकेव मिरर के। तो कॉनकेव मिरर के फर्स्ट 5 केसेस में क्या हो रहा था? कभी इमेज यहाँ बन रही है, कभी इमेज यहाँ बन रही है, कभी इमेज आपकी बिल्कुल इसके नीचे बन रही है। इन द फर्स्ट 5 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर यू कैन कीप दोज इमेजेस इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपके पास है तो आप देखो उनके अंदर कि जो फर्स्ट 5 डायग्राम बनाए थे हमने कॉनकेव मिरर के, इन फर्स्ट 5 केसेस, इन ऑल दोज फर्स्ट 5 केसेस इमेज हमेशा क्या बन रही थी हमारी? रियल। And as you can see all those 5 diagram, in all those 5 diagram, when the image is real, it is always in front of the mirror। कि रियल इमेज जो बनती है वो हमेशा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने बनती है, और ये हमारा क्या है? पोल ऑफ द मिरर। और जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गई, हम कहाँ पे आ रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट के। तो व्हेन यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस और इमेज रियल होती है, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, और वो मेजर करने के लिए हमको पोल से हमेशा कहाँ आना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो रियल इमेज के केस में अगर वो बता रहा है आपको स्टेटमेंट में, तो जो v की वैल्यू है इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। आई होप दिस रूल इज क्लियर टू एवरीवन कि रियल इमेज हमेशा कहाँ बनती है? लेफ्ट साइड। इसमें तो रियल इमेज बनती ही नहीं है। इन दिस केस ऑलवेज द इमेज इज वर्चुअल। तो जब भी रियल इमेज बनती है इट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड व्हाइल मेजरिंग वी हैव टू मूव फ्रॉम पोल टू दैट इमेज, और पोल से हम कहाँ आएंगे? लेफ्ट में आएंगे। तो लेफ्ट में अगर हम मेजरमेंट करने के लिए आते हैं तो वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। एंड लास्ट केस ऑफ कॉनकेव व्हेन द इमेज फॉर्म वर वर्चुअल, और वो कहाँ बनी थी? पोल के राइट हैंड साइड में। और इसमें तो हमेशा इमेज यहाँ ही बनती है या फोकल पॉइंट के ऊपर बनेगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो दोनों केस में अगर हम बात करें तो व्हेन द इमेज इज वर्चुअल, तो हम मेजरमेंट करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लाइट की डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और जब हम व्हेन वी आर मूविंग और व्हेन यू आर measuring the distance in the direction of light, और वर्चुअल हमेशा कहाँ बनती है? दूसरी साइड पे बनेगी। और हम किस साइड में जा रहे होंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो रियल इमेज हर बार हम डायग्राम बना के चेक नहीं कर सकते हैं। तो यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि व्हेन द इमेज इज रियल द वैल्यू ऑफ v इज नेगेटिव, व्हेन द इमेज इज वर्चुअल द वैल्यू ऑफ v इज पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज द थर्ड value in this formula? f, which is called focal length. So focal length is represented by the small letter f. Few of the students represent it like this. This is the incorrect manner because capital F is what? The focal point. तो capital F क्या होता है? focal point होता है। तो ये ध्यान रखना, don't represent this f by the capital F, always by the small letter. I hope the basics are clear to everyone. Next is the focal length. The focal length, obviously बात है, focal length is different for the different kind of mirror. First is concave mirror. Second is convex mirror. So in case of concave mirror, F is, you can draw the mirror. This is the concave. This is the focal point, this is the pole of the mirror, and what is the focal length?
द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकल पॉइंट। सेम इस तरह से इसके अंदर है। अब देखो मैं कैसे मेजर कर रहा हूँ, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकल पॉइंट एंड दिस इज द फोकल लेंथ। अब एरो का यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ एरो because we have to measure the distance from the pole of the mirror. This is what concave, और concave में focal length क्या होगी, pole और focal point के बीच में distance। measurement start कहाँ से करनी है, pole से। कहाँ जा रहे हैं, left hand side। so PR, what is the direction of light, toward the right। और focal length measure करने के लिए हम कहाँ आ रहे हैं, left में। तो concave mirror in each and every case the focal length of concave is always negative and convex is positive। clear to everyone why it is positive? पोल से फोकल पॉइंट की तरफ जाना है और वो किस तरफ जा रहे हैं, we are moving in the direction of light। so कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व कर रहे हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है इन चीजों के अंदर भी क्या होगा कैसे होगा, तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो कभी भी चेंज नहीं होने वाला जिसका साइन वो कौन है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। सेकेंड इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होगी कॉनकेव की हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, कॉन्वेक्स की हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। इमेज की डिस्टेंस, अगर क्वेश्चन में बताया है कि इमेज क्या है, रियल है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव, और इमेज क्या है, वर्चुअल, डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला। बेस्ड अपॉन दिस मिरर फॉर्मूला वी विल सोल्व few of the numericals and these are the important point related while using the mirror formula. Second is the linear magnification. So what is the meaning of linear magnification? We have used the word linear। linear का मतलब है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है और what is the height of object, what is the height of image form। We have already discussed कि what is the symbol of linear magnification, m। So there are two formula, hi by ho। hi is height of, I stand for image, ho is height of ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का यही मतलब हुआ कि जो हमारी इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी कम या ज्यादा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। सिर्फ हाइट को ले रहे हैं, उसकी थिकनेस को नहीं ले रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन hi by ho। So this is the first formula। One of the important thing that you have to remember is ho is when we are using the formula। तो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी हो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा क्या होगा, इरेक्ट पोजीशन में होगा, इट इज ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हाट आर द कार्टेशियन रूल, कि अगर आप हाइट मेजर कर रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहे हो तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर आप हाइट मेजर कर रहे हो और वो हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहे हैं देन द हाइट विल बी नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट का रूल हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा। इफ इट ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको सोचना ही नहीं है, जब भी आपको HO की वैल्यू लेनी है इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। द वैल्यू ऑफ HI की पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेनी है, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इमेज। इफ द इमेज इज रियल तो रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। इफ द इमेज इज वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो वो आपको बताएगा नहीं क्वेश्चन के अंदर, वो सिर्फ ये देते हैं कि इमेज क्या बनी है, रियल। तो रियल इमेज आपको पता होनी चाहिए कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीनिंग इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो HI की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इफ द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, वो बताएंगे नहीं वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो हाइट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। इफ द हाइट्स आर नॉट गिवन, इफ द हाइट्स आर नॉट गिवन, कि फॉर्मूले के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर हाइट नहीं दे रखी और आपसे पूछ रहे हैं यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, देन यू कैन यूज द सेकंड फॉर्मूला, माइनस v by u। and all of you are aware what is the meaning of v and u। what is minus sign you have to use। ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि माइनस v है, ये माइनस साइन लगाना है और v by u। v by u के लिए वही रूल फॉलो करने हैं जो हमने यहाँ पे फॉलो किए थे, जो भी गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। तो m इज इक्वल टू माइनस v by u। अगर हमको डिस्टेंस पता है इमेज की कितनी दूर बनी है
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है वो कितनी दूर पे है, so by dividing the image distance by the object distance you will also get the magnification. So for magnification you can use the two formulas. Linear magnification it is hi by ho, and the second is minus v by u. So how you have to write in the notebook? First write the mirror formula, then write this formula, and what are the meaning of these symbols. Next, these important point. Second, you have to write the linear magnification, then you have to write this formula. What are the height? HO is always positive when HI will be positive and when HI will be negative. Next is the second formula, M is equal to minus V by U. V by U, what are V and U? Already is written. So I hope this mirror formula and linear magnification is clear to everyone. If you still have any doubt related to either of these points, because the most confusing thing for the few of the students will be these, कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है. अगर अभी भी कंफ्यूजन आ रहा है तो देन यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो कि द साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, कि कहाँ पॉजिटिव साइन यूज करना है और कहाँ नेगेटिव साइन यूज करना है. लाइट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो पॉजिटिव साइन, लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो मेजरमेंट करने के लिए नेगेटिव पॉइंट. और मेजरमेंट कहाँ से करनी है? पोल से. इफ यू आर मेजरिंग अबव द प्रिंसिपल एक्सेस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस नेगेटिव, ये बेसिक रूल है. उसके बाद सारी मेजरमेंट कहाँ से करनी है? पोल से. ये तीन बेसिक चीजें याद रखनी है कि पोल से मेजरमेंट करनी है डिस्टेंस की. लेफ्ट में जाओगे या राइट में जाओगे? लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट में आ रहे हो तो नेगेटिव. प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर कर रहे हो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर कर रहे हो नेगेटिव. दीज आर द बेसिक. So this is what all about the mirror formula and linear magnification. So in next few module we will discuss few of the numericals based upon this mirror formula, where we have to use positive sign, negative sign, the Cartesian rules and linear magnification. So I request all of all of the students, please again go through those Cartesian rules or new Cartesian rule or sign convention for the spherical mirror, where you have to use positive sign, where you have to use negative sign, because the formula is nothing, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, सभी को लर्न हो जाएगा. The main difficulty and the main error will be in the signs, where you have to use positive sign or negative sign. बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल, ऐसा कुछ नहीं है. It is simpler in comparison to the electricity chapter, but you should be aware about the sign convention for spherical mirror. अगर उसमें मिस्टेक होती जाएगी, always your answer will always be incorrect. So again go through the sign convention video. So now you can take the screenshot and can write in fair notebook. If you still have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you students.